Okay, I think we should start today's class. Okay, good morning to student. Today we will start unit 3rd of operating system. We have already revised unit 1 and unit 2 once again. Now today we will start unit 3. The content of unit 3, I think all are you seeing on the screen. Unit 3 topic is the deadlock problem, deadlock categorization, deadlock prevention, deadlock avoidance, deadlock detection, recovery from deadlock, method for deadlock. So basically half unit is dedicated for the deadlock problems and how we can avoid the deadlock problems and how we can prevent deadlock problems and the half of the unit based on the memory management. So this is our content or topic of the 3rd unit. We will cover in the 3rd unit. Now come to the topic. So anyone tell me about the deadlock? I think all are you aware about the deadlock? Yes. सर डेडलॉक में शायद एक ही प्रोसेस बार बार साइक्लिक ऑर्डर में होने लगती है. No. Anyone, any other student? Tell me about the deadlock. Yes. Anyone? शायद Yes. प्रोसेस इनफाइनाइट लूप में चली जाती है. Infinite. वेट करते करते प्रोसेस सर इनफाइनाइट लूप में चली जाती है. Okay, definitely. Deadlock. Not that means nothing. Nothing has to do done. We cannot do anything during the deadlock. I think the most practical example we have already seen the deadlock about the deadlock. Anyone tell me the example of the deadlock which we have seen? सर वो C++ में इनफाइनाइट लूप में पहुंच जाते थे. इनफाइनाइट लूप में C++ में और उसके अलावा आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फेस कर रहे होंगे, करते होंगे, रोज करते होंगे. मैं तो रोज आप जब सिस्टम से काम कर रहे हो तो अगर रियली में आप सिस्टम से यूटिलाइज कर रहे हो तो यू विल फेस द डेडलॉक प्रॉब्लम डेली. अगर आपका सिस्टम थोड़ा सा भी स्लो प्रोसेसिंग है तो, फास्ट प्रोसेसिंग है तो इट मे बी कि आपको वो प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर थोड़ा सा भी सिस्टम्स की प्रोसेसिंग स्लो है देन यू विल फील द डेडलॉक सिचुएशन. सिस्टम्स का हैंग होना, सिस्टम्स का हैंग होना मतलब जब whenever we will execute multiple program simultaneously, तो उस ड्यूरेशन में क्या होता है कि आपका जो प्रोसेसिंग होती है वो बहुत स्लो हो जाती है. अगर हमारा प्रोसेसर स्लो है या मेमोरी स्पेस हमारे पास कम है तो उस सिचुएशन में हमारे पास क्या वेटिंग पीरियड बढ़ता जाता है और धीरे धीरे वेटिंग पीरियड इतना बढ़ता जाता है कि हमारा सिस्टम प्रॉपर हैंग हो जाता है. तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सिस्टम हैंगिंग की प्रॉब्लम्स को देखा होगा कि हमारा सिस्टम हैंग हो गया यार, अब हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं. और रीजन सर भी है कि नंबर ऑफ प्रोसेस हमने साइमल्टेनियसली ओपन करने की कोशिश करी है. और ये एक बेसिक एग्जांपल है डेडलॉक का. तो the content of the deadlock unit, like the system model, deadlock categorization, method for handling deadlock, deadlock prevention, deadlock avoidance, deadlock detection, and recovery from the deadlock. So these are the topic which we will cover in the deadlock unit. So before the to understand the about the deadlock, we should understand about the system model. System model is what? System consists of resource type like R1, R2 and Rn. For example, we have a system and how many resource we have. So for example, one resource is the speaker, another resource is the printer,
another resource is the webcam, another resource is the hard disk, memory, processor, input output device. These are the resources. Basically resources is CPU cycle, memory space, input output devices. These are all are the resources of a system, and with the help of these resources our systems is prepared. Each resource type Ri has Wi instance. Now look at this. Each resource type Ri has Wi instance. For example, कि हमारे पास एक रिसोर्स है, रिसोर्स को हम ऐसा बोल सकते हैं कि वी हैव अ रिसोर्स इनपुट डिवाइस. तो ये मेरा Ri क्या है, एक इनपुट डिवाइस हुआ. Ri इज अ इनपुट डिवाइस and Wi the instance. How many instance of that resource we have? So in any system we have at least two input device. One is the keyboard and another is the mouse. तो दो इंस्टेंस हो गए हमारे पास किस रिसोर्स के, रिसोर्स टाइप इनपुट आउटपुट मेरा रिसोर्स था, इनपुट डिवाइस को एज ए मैंने रिसोर्स कंसीडर किया है, और इसमें जो WI इंस्टेंस हो गए वो दो हो गए हमारे पास है कि एक कीबोर्ड हो गया और एक हमारा माउस हो गया. तो दैट इज द इंस्टेंस. तो आई थिंक इट इज द क्लियर कि वी हैव रिसोर्स टाइप RI and WI the इंस्टेंस. फॉर एग्जांपल, now come to the another memory space. We have a memory, that is the resource. We have memory, this is our resource. Now what will be the instance of a resource memory? So the one is a RAM, another is the ROM, and third one is the hard disk, that is called the secondary. Yes, primary memory, secondary memory, random read only memory. These are the instance for a resource memory type. Furthermore, we classified memory, then we will see the register, cache memories, and some other buffer is also a temporary memory space which can play a role to store the information. So Ri is the resource and resource is the memory, and we have number of instances of the memory resource. Each process utilize a resource as follows: request, use and release. हर एक प्रोसेस का काम क्या होता है? रिक्वेस्ट करना किसी भी रिसोर्स के लिए, उसका यूज करना एंड देन रिलीज दैट रिसोर्सेज. तो ये एक बेसिक सिस्टम मॉडल है हमारा कि सिस्टम मॉडल में रिसोर्सेज होंगे, हर एक रिसोर्सेज के इंस्टेंस होंगे, वो रिसोर्सेज मिलकर हमारा पूरा सिस्टम बनाते हैं. उस सिस्टम में जब प्रोसेस आती है तो प्रोसेस किस तरीके से होती है कि वो एक रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट भेजेगी, उस रिक्वेस्ट का यूटिलाइजेशन होगा एज पर जो रिक्वेस्ट हमारी ग्रांटेड हुई है, एंड देन वी विल रिलीज द रिसोर्सेज एंड टर्मिनेट द प्रोसेस. तो दिस इज आवर बेसिक सिस्टम मॉडल जो नॉर्मली हम एक कंप्यूटर या सिस्टम के साथ देखते हैं या वर्क करते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट. What is the deadlock categorization? What is the deadlock characteristics? Criteria for the deadlock. Deadlock एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर प्रोसेस कुछ नहीं कर सकती है, सिस्टम हमारा कुछ नहीं कर सकता है. जैसे आप सभी लोगों ने बताया कि इनफाइनाइट लूप में चला जाना, प्रोसेस का वेट करते करते अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में लेकर आ जाना जहां पर कि प्रोसेस मिसबिहेव रिएक्ट करने लगे. ठीक है, तो डेडलॉक इज ए प्रॉब्लम. बेसिकली डेडलॉक क्या है? एक प्रॉब्लम है. ठीक है, और अगर ये चार कंडीशंस में से कोई सी भी हमारी कंडीशंस ऑकर होती है तो डेडलॉक वहां पर एग्जिस्ट हो जाएगा. Deadlock can arise if four conditions hold simultaneously. So the first condition is the mutual exclusion. Mutual exclusion, only one process
at a time can use a resource. Another is the hold and wait, no preemption, and the circular wait. So these four conditions, if occur simultaneously, then we can say deadlock exists in the system. म्यूचुअल एक्सक्लूशन क्या है? ओनली वन प्रोसेस एट ए टाइम कैन यूज अ रिसोर्स. एक रिसोर्स केवल एक प्रोसेस को ही यूज कर सकता है. फॉर एग्जांपल दैट इज कॉल्ड द प्रिंटर. इफ नंबर ऑफ प्रोसेस साइमल्टेनियसली send a print request, then the printer will accept only one request at a time. That is the mutual exclusion. कि अब अगर मैंने 10 प्रोसेस एक साथ प्रिंट के लिए गई हैं तो एक प्रिंटर क्या कर रहा है, केवल एक ही प्रोसेस की रिक्वेस्ट को एट ए टाइम वो एक्सेप्ट करेगा. बाकी की जो 9 प्रोसेस है वो हमारी वेटिंग में चली जाएंगी. तो अगर इस तरीके की सिचुएशंस आकर होती है तो डेडलॉक आ सकता है. होल्ड एंड वेट, अनदर कंडीशन. According to hold and wait, a process holding at least one resource is waiting to acquire additional resource held by other process. मतलब एक प्रोसेस है जो एक रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करती है और वो जो प्रोसेस जो रिक्वेस्ट कर रही है वो ऑलरेडी एक रिसोर्सेज को होल्ड किए हुए है. जैसे कि मैं हूं, मैं सपोज करिए किसी रिसोर्स के लिए मैंने रिक्वेस्ट करी है और एक रिसोर्स ऑलरेडी मैं होल्ड करके रखा हूं, तो दैट इज कॉल्ड द होल्ड एंड वेट. अगर ये सिचुएशंस है हमारी कि सिस्टम के अंदर प्रोसेस एक रिसोर्स को होल्ड करके रखे हुए और दूसरे रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रही हैं, तो ये सिचुएशंस, ये कंडीशन भी डेडलॉक की कंडीशंस में काउंट होती है. Now come to the next characteristics of the deadlock or next condition for the deadlock is the no preemption. According to no preemption, a resource can be released only voluntarily by the process holding it after that process has completed its task. No preemption मतलब रिसोर्स की परमिशन नहीं देना किसी दूसरी प्रोसेस को यूज करने के लिए जब तक कि एक प्रोसेस अपना टास्क कंप्लीट ना कर ले. फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस है जिसने प्रिंटर को होल्ड करके रखा है. अब जब तक वो प्रोसेस अपनी सारे टास्क कंप्लीट नहीं कर लेगी वो प्रिंटर को रिलीज नहीं करेगी. नो प्रीम्पशन. तो अगर इस तरीके की कोई कंडीशंस आकर होती है तो ये भी हमारी डेडलॉक की कैटेगरीज में काउंट होती है, डेडलॉक कैरेक्टरिस्टिक्स में काउंट होती है. नाउ लास्ट वन कंडीशन इज द circular wait condition. If there exists a set of process like P0, P1, Pn of waiting process such that P0 is waiting for a resource that is held by P1. P1 is waiting for a resource that is held by P2. Similarly, Pn minus 1 is waiting for a resource that is held by Pn and Pn is waiting for a resource that is held by P0. सर्कुलर वेट मतलब मेरे को एक पूरा सर्कुलर बनाना है कि 4 प्रोसेस हैं. फॉर एग्जांपल पहली प्रोसेस ने एक रिसोर्स की रिक्वेस्ट करी है और वो रिसोर्स है जो कि P1 उसको होल्ड करे हैं. सिमिलरली P1 ने एक रिसोर्स की रिक्वेस्ट करी है जिसको P2 होल्ड करे हैं. P2 ने एक रिसोर्स की रिक्वेस्ट करी जिसको P3 होल्ड करें और P3 ने एक रिसोर्स की रिक्वेस्ट करी जिसको P1 होल्ड करे हैं. जब इस तरीके से हम देखेंगे तो वी विल फाइंड अ सर्कुलर वेट कि कोई भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पा रही और एक सर्कुलर वेट बन गया, सर्कुलर पाथ बन गया है. इफ सर्कुलर वेट और सर्कुलर पाथ एग्जिस्ट है बिटवीन द प्रोसेस देन दैट वी कैन से डेडलॉक occur. So these are the 4 conditions or 4 characteristics for the deadlock. One is the mutual exclusion, second is the hold and wait, third one is the no preemption, and fourth is the circular wait. And I think we should remember these 4 criteria to occur deadlock. Yes.
सर सर्कुलर वेट का एक बार बता दीजिए वापस। सर्कुलर वेट का जस्ट मिनट, like this. It is visible? यस सर। Now see, there are three processes, P1, P2 and the P3. P1 requesting a resource R1. P1 is requesting a resource R1 and P1 has a resource R2. P1 has a resource R2. R2 resource has two instances, 1 and 2. Resource R1 has only one instance, resource R3 has only one instance, and resource R4 has three instances. That means, for example, R2 is the memory, then the RAM and the ROM. R4, for example, we have a input speakers or audio device, so we have a speaker, we have attached microphone, we have attached Bluetooth, for example, and R1 and R3, these other resources. So these are the resources and the instance of the resources corresponding a resource. P1, P2 and P3 are the three processes. P1 is demanding resource R1 and holding R2. Similarly, P2 is demanding resource R3 and holding R1. P3 is holding R3 and demanding R2. So now look at this. This is a circular path. P1, P2, P3, P, say again P1. P1, P2, P3, again P1. तो P1 जिसकी डिमांड कर रहा है R1 की, वो P2 होल्ड करके रखा है, मतलब P1 को कंप्लीट होने के लिए R1 चाहिए है, ठीक है, उसके पास R2 है और R1 की डिमांड कर दी। अब P1 इस R2 को तब तक रिलीज नहीं करेगा जब तक कि उसको R1 ना मिल जाए। सिमिलरली P2 को टास्क कंप्लीट करने के लिए R3 की जरूरत है और वो R1 को पहले से होल्ड करे हैं, ठीक है ना। R2 भी तो कर रहा है, R1 को, हाँ R2 को भी होल्ड करके रखा है, P2 R2 को भी होल्ड करके रखा है और R1 को भी होल्ड करके रखा है, ठीक है। R3 जो है वो किसके द्वारा होल्ड है, P3 के द्वारा, और P3 को कंप्लीट होने के लिए R2 चाहिए, ठीक है ना। R2 के दो इंस्टांस हैं, लेकिन दोनों इंस्टांस एक एक प्रोसेस में कैप्चर करके रखे हुए हैं। तो अब इस सिचुएशन में कोई भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर रही है और आप देखेंगे कि एक सर्कुलर ग्राफ यहाँ पर बन गया है, दैट इज आल्सो अ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, सर्कुलर पाथ बन गया है। ये सर्कुलर पाथ बोलता है कि ना डेडलॉक ऑकर हो गया। तो आई थिंक दिस इज अ सर्कुलर पाथ, इट इज क्लियर अंजलि? यस सर। Okay, so deadlock with the mutex lock. Deadlock can occur via system call or locking. या तो मैं लॉकिंग मैकेनिज्म यूज कर रहा हूं या फिर कोई सिस्टम्स कॉल जनरेट हो रहे हैं जिसकी वजह से हमारा डेडलॉक ऑकर होता है, ठीक है। और डेडलॉक ऑकर हो रहा है, दैट मीन्स चार कंडीशन में से कोई ना कोई कंडीशन एक हमारी ट्रू हो रही है, ठीक है। चारों हो रही हैं तो वो तो एक है, लेकिन चार में से कोई ना कोई एक कंडीशन ट्रू जरूर होगी, तभी डेडलॉक होगा। चार कंडीशन कौन कौन सी है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीम्पशन एंड सर्कुलर वेट, ठीक है। और अगर बोला है कि डेडलॉक ऑकर हुआ है, दैट मीन्स चार में से कोई ना कोई एक कंडीशन हमारी वहां पर फुलफिल हो रही होगी। एंड अगर एक कंडीशन फुलफिल हो रही है तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि एक कंडीशन वो चारों कंडीशन को फुलफिल कर देगी। किसी भी एक कंडीशन को आप गौर से देखिए, अगर एक कंडीशन भी ट्रू हो रही है तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली चारों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी, ठीक है। और जैसे ही वो कंडीशन फुलफिल हुई तो डेडलॉक ऑकर हुआ। आप अच्छे से देख लें, कोई भी एक कंडीशन वंस अगेन फुलफिल हो रही है जिसके कारण डेडलॉक ऑकर आ रहा है। मैंने बोला डेडलॉक आ गया, डेडलॉक आ गया, म्यूचुअल एक्सक्लूजन की वजह से डेडलॉक आ गया। अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन की वजह से डेडलॉक आ गया है, दैट मींस वहां पर आपने होल्ड एंड वेट ऑटोमेटिकली आ चुका है, नो प्रीम्पशन ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट हो गया और सर्कुलर पाथ बन गया है, तभी हमारा ये पॉसिबल हुआ है।
अगर मैं बोलूं होल्ड एंड वेट की वजह से डेडलॉक हुआ है, तो होल्ड एंड वेट की वजह से डेडलॉक हुआ है, लेकिन वहां पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी एग्जिस्ट हो गया, नो प्रीएम्पशन भी एंड सर्कुलर वेट। तो सारी कंडीशन एक दूसरे से लिंक है। एक भी कंडीशन ट्रू होगी बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली बाकी कंडीशन भी हमारी ट्रू हो जाएंगी, और जिस वजह से हमारा डेडलॉक आता है। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इज द बेस्ट मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई द डेडलॉक। In this, we identify the resources and the instance of the resources, and we find out number of process which is required or hold a resources. Another thing that is called the ages. One is the request age and another is the assignment age. If P1, now look at this, P1 indicating to Pi is indicating to Rj. That means P is indicating to R. That means this is the requesting age, and R is indicating to process. Resources indicate to a process, that is means assignment age. मतलब P1 इस Rj को रखे हुए है, और यहाँ पर ऊपर वाले में देखें कि P1 रिक्वेस्ट कर रही है रिसोर्स की। So this is the request age and assignment age, and P and resource means P and R. P is representing for the process and R is representing for the resources. Process, we represent the process in the oval box, resource type with 4 instance. This is the rectangle or circular square box. आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेक्टेंगल और स्क्वायर, इधर इसका वो नहीं है, मैटर नहीं करता है। यहाँ पर इसके अंदर जो 4 छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हैं वो बता रहे हैं कि ये रिसोर्स के इंस्टांस हैं। दीज आर द इंस्टांस ऑफ द रिसोर्स। पीआई रिक्वेस्टिंग इंस्टांस आरजे। नाउ पीआई इज रिक्वेस्टिंग अ रिसोर्स आरजे। अब आरजे में का मतलब ये नहीं है कि इस पीआई ने इन चारों इंस्टांस की रिक्वेस्ट, आरजे की रिक्वेस्ट करी थी उसने, आरजे ने अपना एक इंस्टांस पीआई को दे दिया। अब अगर कोई अदर प्रोसेस आरजे की डिमांड करेगी तो डेफिनेटली आरजे फुलफिल द डिमांड until unless all the instances assign। जब तक कि ये सारे इंस्टांस आरजे के पास असाइन नहीं हो जाएगा, आरजे फुलफिल करता रहेगा रिक्वेस्ट को। PI is holding an instance. PI is holding an instance. Thus, so this is the resource allocation graph. Now, after completing the resource allocation graph, look at this. We have a 3 process and we have a 4 resources, and each resources has instance. R1 and R3 has only 1 instance, and R2 has 2 instance, and R4 has 3 instance. But right now no process is demanding for R4 resources. P1, P2 and P3 resource allocation graph without a deadlock. Look at this कि ये आपका ग्राफ है जो कि ये शो कर रहा है कि यहाँ पर कोई डेडलॉक ऑकर नहीं हुआ है। P1 को कंप्लीट होने के लिए, मीन से यहाँ से देखें P3 को कंप्लीट होने के लिए जो P3 असाइन है उसको R3 चाहिए। P3 अपना टास्क जैसे ही कंप्लीट करेगा R3 रिलीज हो जाएगा। R3 जैसे ही रिलीज हुआ तो P2 अपना वर्क कंप्लीट कर लेगा, और जैसे ही P2 अपना वर्क कंप्लीट करेगा ये R1 रिलीज हो जाएगा, और R1 रिलीज होगा तो P1 अपना टास्क कंप्लीट कर लेगा इस R1 और R2 की हेल्प से। तो दिस इज अ रिसोर्स एलोकेशन के हाउ मेनी टाइप्स वी कैन एलोकेट रिसोर्स और हाउ वी कैन fulfill a request of a resource by the process। तो अगर आपका ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ आप बना लेते हो तो डेफिनेटली यू विल फाइंड आउट द डेडलॉक ऑकर होगा या नहीं होगा। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इज द मैकेनिज्म to find out the deadlock. We have already seen this resource allocation graph with a deadlock graph with a cycle but no deadlock. That is the important कि अगर सर्कुलर पाथ बना है तो ये गारंटी नहीं है कि डेडलॉक हो, लेकिन डेडलॉक may or may not be occur. If a circular path exists, then deadlock may or may not be occur in the system. It just depend on the instance of the resource.
कि हमारे पास एक रिसोर्स के इंस्टांस कितने अवेलेबल हैं, ये उस पर डिपेंड करेगा। तो look at this diagram. P1 is demanding resource R1. P2 is holding a resource R1. P3 is also holding a resource R1. P3 is requesting resource R2. P4 is holding a resource R2 and P1 is also holding a resource R2. तो at present कोई भी रिसोर्स यहाँ पर फ्री नहीं है, ठीक है। सर्कुलर पाथ ही बन रहा है। P1 is dependent on the P2, either P2 और P3. P3 is dependent on the P1. तो now look at this कि अगर एक देखें तो यहाँ पर सर्कुलर पाथ है, बट अगर मैं यहाँ पर देखूं कि P2 and P4 holding a instance of R1 and R2 respectively, and they are not demanding to any other resources. In this situation, P2 and P4 will complete their task and they will release instance of R1 and R4. Once the instance of resource release, then it will occupied by the or fulfill to the request of the P1 and the P3. And the P1 and P3 को जैसी resource मिलेंगे R1 and R2, they will also finish their task. तो सर्कुलर पाथ तो है लेकिन डेडलॉक नहीं है, इसका वजह आपके सामने है। So we cannot say the circular path or circular graph is a guarantee of deadlock. It may or may not be. Basic facts. A graph contain no cycle. If graph contain no cycle, then definitely we can say no deadlock. If graph contain a cycle, if and only one instance per resource type, then deadlock can occur. If several instances per resource type, possibilities of the deadlock. So this is a basic fact for a deadlock in terms of a graph. I think यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? Anyone? No, sir. Clear है everybody? And apart from Yes, sir. ठीक है, okay. Now come to the next method for handling deadlock. How we can handle a deadlock? Method for handling deadlock. तो डेडलॉक को हैंडल करने के लिए जो मेथड हैं, तो सबसे पहला इंश्योर दैट सिस्टम विल नेवर एंटर अ डेडलॉक स्टेट. डेडलॉक स्टेट में सिस्टम्स को इंटर नहीं करना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए, ये हम इंश्योर करें. If we ensure that system will never enter in a deadlock situation, that we can say our system is a efficient, आपका है efficient system है, हमारे system की reliability अच्छी है, and each and everything is good if the system does not enter in deadlock. अगर system enter कर रहा है, then definitely we are running simultaneously process, and as compare the running process, we have less resources, like we have a less memory or we have other some less resources. Most of the time we have seen that due to the memory problems, we face the deadlock situation, memory space. Generally आप लोग जैसे हम बोलते हैं कि हमारे पास 2 GB की रैम है. अब आप 2 GB की रैम में एक .NET की एप्लीकेशन रन करो और एक बिग डेटा की एप्लीकेशन रन करो, देन यू विल फाइंड आउट कि थोड़ा देर के बाद सिस्टम का जो रिस्पांस है वो बढ़ जाएगा, रिस्पांस टाइम, और धीरे धीरे सिस्टम स्लो प्रोसेस करेगा. और अगर आप .NET एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली रन कर रहे हैं और आप यहाँ एक बिग डेटा या मशीन लर्निंग की एक टूल्स आप रन कर रहे हैं, यू विल फाइंड आउट कि आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा, ओपन ही नहीं हो पाएगा पहली बार. अगर ओपन हो भी गया तो एक भी प्रोसेस को वो एग्जीक्यूट नहीं करा पाएगा.
तो ये सबसे बेसिक एग्जांपल है और सब लोगों का प्रैक्टिकल एग्जांपल है, सबने प्रैक्टिकली इसको फेस किया है डेडलॉक को। तो इस तरीके की सिचुएशन में सिर्फ दो है कि डेडलॉक आकर हो गया, डेडलॉक आकर हो गया तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही कंडीशन होती है कि नाउ किल ऑल द प्रोसेस वन बाय वन, इफ इट इज नॉट पॉसिबल देन रीबूट द सिस्टम। हैंगिंग की कंडीशन में क्या होता है कि हम या तो किल करें एक एक प्रोसेस को वन बाय वन, टर्मिनेट करते जाएं, ठीक है, या फिर हम रीबूट कर दें जब डेडलॉक आकर हो जाता है। यही हम अडॉप्ट करते हैं जनरली। लेकिन अगर हम एक प्रॉपर मेथड से चलें तो सबसे पहले आता है हमारे पास डेडलॉक प्रिवेंशन। डेडलॉक प्रिवेंट करो, डेडलॉक प्रिवेंट नहीं हो रहा है तो डेडलॉक को अवॉइड करो, और डेडलॉक अवॉइड नहीं हो रहा है तो डेडलॉक से रिकवर करो। मतलब देखिए, आप किसी व्यक्ति से मिलने का टाइम मांग रहे हैं, ठीक है ना, डेडलॉक। अब आप देखिए, अगर आपने किसी व्यक्ति से मिलने का टाइम मांगा और उस व्यक्ति ने बोला कि ठीक है एक काम करिए आप कल आ जाना, ठीक है, लेकिन आने से पहले एक बार रिंग कर लेना। फिर कल आपने एक बार रिंग करी निकलने से पहले, उसने फिर बोला यार आज तो मैं बिजी हूँ कल आना आप, ठीक है ना। ऐसे करते करते आपको लगे कि अगर ये 5 दिन 10 दिन हो गए और यार ये हमेशा वो कर रहा है, तो मतलब वो प्रिवेंट कर रहा है, रोक रहा है, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड द प्रिवेंशन। एंड अवॉइडेंस, अवॉइडेंस कि आपने क्या किया कि यार ये 4 दिन हो गए मेरे को रोज रिंग करता हूँ निकलने से पहले और मेरे को टाल देता है कि आज मैं अवेलेबल ही नहीं हूँ। आपने 5वें दिन रिंग नहीं करी और बिगर रिंग किए उसके घर पहुंच गए, ठीक है, मिलने के लिए। अब उसने देख लिया कि यार ये तो घर ही आ गया है, तो अब उसने अवॉइड करना चालू किया। आपको अवॉइड करना कैसे चालू किया कि आप आ गए, हाय हेलो, तो पता पड़ा कि उसने कोई काम निकाल लिया। फॉर एग्जाम्पल गार्डनिंग में तो गार्डनिंग कर रहा है वो, आपको मतलब ध्यान ही नहीं दे रहा है आपकी तरफ, ठीक है। 4 लोगों को बुला लिया अपार्ट फ्रॉम के आप तो बात करने आए थे, साथ में उसने 4 लोगों को बुला लिया, सबको वहीं बिठा लिया, तो आपके साथ ही बात कर रहा है लेकिन आपको वो अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। दैट इज कॉल्ड द अवॉइडिंग, ठीक है ना। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि अवॉइड भी धीरे धीरे हम ज्यादा देर तक अवॉइड नहीं कर पाएंगे। उस सिचुएशन में क्या होगा कि पर्टिकुलर व्यक्ति को आपसे बात ही करनी पड़ेगी, और जैसे ही बात करेगी पता पड़ा डेडलॉक आकर हो गया। तो ये एक सिचुएशन होती है कि डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस, एंड दोनों फेल हो गए तो डेडलॉक रिकवर, कि भाई अब तो बात करनी ही करनी है, बात होगी, अब बात होने के बाद जो परेशानी आएगी उससे हम रिकवर कर लेंगे। तो 3 चीजें होती हैं मेथड फॉर हैंडलिंग अ डेडलॉक: डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस। If both the conditions are failed, deadlock prevention and deadlock avoidance, then definitely deadlock will occur. And once a deadlock occur, then we have another method, deadlock recovery method. So ये एक बेसिक ओवरव्यू था डेडलॉक के बारे में। Now, if anyone want to ask about the deadlock, then please, है ना। आज की क्लास अब हम यही है। अब आप लोगों से मैं जानना चाह रहा हूँ कि प्लीज आप लोग बताइए कि डेडलॉक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, डाउट, एनीवन? जी, किसी को कोई डेडलॉक से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन? डेडलॉक क्या होता है, क्लियर है सबको? डेडलॉक एक सिचुएशन है, एक प्रॉब्लम है जिसके अक्कर होने पर सिस्टम्स का जो यूजफुल वर्क है वो पूरा स्टॉप हो जाता है। और ये आता क्यों है? ये 4 कंडीशन है आपके पास आने के लिए डेडलॉक की, 4 में से एक भी अगर आ गई हमारी तो डेडलॉक यहाँ पर अक्कर हो जाएगा। और डेडलॉक जैसे ही अक्कर होगा पूरा का पूरा काम हमारा बंद हो जाएगा। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ओनली वन प्रोसेस एट ए टाइम,
Hold and wait, a process holding a resource and requesting another resources. No preemption, that means resources are not permitted by a process और circular wait अगर circular path बन जाए तो these are the character. Resource allocation graph is also a mechanism to find out the deadlock. ठीक है, deadlock आने की वजह क्या होती है, या तो either system call और yes प्रवीण, yes प्रवीण, हेलो 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 जी सर। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर, जैसे कि आपने बोला डेडलॉक से अपना सिस्टम स्लो हो जाता है, बहुत सारी प्रोसेसेस एक साथ वर्क करती हैं तो सिस्टम चलता नहीं है, यही बताएं। तो सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे कि वायरस अगर कोई एंटर करता है हमारे कंप्यूटर या पीसी में, तो वो भी हमारी प्रोसेस स्लो कर देता है। बिल्कुल, वायरस तो अल्टीमेटली क्या बैकग्राउंड में नंबर ऑफ प्रोसेस चल रही हैं, हाँ ठीक है ना, हाँ, तो वायरस क्या करता है, नंबर ऑफ प्रोसेस को रन करा देता है बैकग्राउंड में। उसको प्रिवेंट कराने के लिए सर एंटीवायरस डलवाते हैं। जी तो बिल्कुल, मतलब ये जो आपने डेडलॉक बताया, तो ये एंटीवायरस और वायरस से मतलब कुछ इंटरलिंक है क्या ये चीज? डेडलॉक एक प्रॉब्लम है, ठीक है, एंटीवायरस इज आल्सो ए प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब सॉरी एंटीवायरस नहीं, वायरस इज आल्सो अ प्रॉब्लम। ये लेस देन 1 मिनट से भी कम समय बचा है बैरागी, तो प्रवीण कभी भी ये टर्मिनेट हो जाएगा।